Hello everyone, welcome back to my new video. This is me Parul, and this video is dedicated to all the students of class 12 preparing for JEE. And if you are in class 12 and your summer vacation had just ended or about to end, then this video is for you all guys. So 1 year ago I was also in the same situation, and before I start I want to make one thing clear that I am not making this video as a topper who manage everything perfectly. I am making this video as someone who experienced the reality of class 12 with JEE and learned a lot from it. So this is my very raw video in which I will share what I experienced. This will only cater the upcoming few months, which is June, July, August, September, the main peak hour of your preparation. So I was a student who started my preparation of JEE from class 12 from Laksh batch. So I will be only be advising to the online platform student, as I was also one of them, and I know the advantage and disadvantage which will be you guys will be facing as a regular student, as I was also a regular student and manage both the school and JEE. Before I start giving my experience, let me tell you that what my class 12 actually looked like, what I faced from the beginning. So I was also a regular school student. So from April only things became serious. I was a regular student. My school started taking Monday tests and class tests, which include marks which would be counted in half yearly. So I have to be serious from the starting only. At the same time, coaching had its own test, homework, and new chapters. So at first I thought this would be normal, and I eventually get used to it. But as months passed, I realized that the real challenge of class 12 was not just studying. It is all about managing both school, coaching, test, revision, and your mental energy also at the same time, because we have very less time. So I am a student who have struggled almost every month, not because I had backlogs, but because there were many things going on. As one test go, another test was waiting. New chapters are also waiting, because coaching has its own flow and school has its own flow. So I have to cater everything, and because I think many of you also will be going to the same situation as I was. Not everything like मेरा तो अप्रैल से ही था, और अगर एक नॉर्मल स्कूल के बारे में बताएं तो इसमें अभी शायद जून जुलाई में अभी यूनिट टेस्ट होगा, फिर हाफ ईयरली होगा, देन एवरीथिंग विल गेट इनटू प्रेशराइज. सो शायद होगा बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा, जैसे मेरे स्कूल में वो जो अप्रैल से लगा हुआ था टेस्ट लेने में. सो आई थिंक school can do anything or everything to do anything to the students. So since I have faced every month the pain and struggle to manage both, I can assure you that what I will tell you in the coming video, the advice which I will be giving to you are not useless. So if you can just watch it, and if you like it and genuinely feel it that it is helpful for exactly what I am now making this video today. If you are entering to the second half of the class 12 after summer vacation, I want to share what I learned from my experience and my guidance, what I wish someone had given me earlier at that time, because at that time I was struggling very much, and no video, I think I searched in YouTube also, but no video was available like how to manage this. I thought that I thought कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है. So it was difficult for me day by day. So let's start with the first thing which every class 12 student should know, as your summer break has been finished. So मैंने भी लक्ष्य बैच लिया था 12th में. So अभी अगर एक साल पहले देखेंगे तो अभी हम लोग का शायद समर वेकेशन चल रहा था, जिसमें हम लोग 3 क्लासेस लग रही थी. शायद अभी भी हो रहा हो 3 क्लास. तो उसी में है कि अभी समर वेकेशन भी ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म होने वाला होगा तुम लोग का. तो स्कूल और कोचिंग कैसे मैनेज करना है, तो पहले तो हम समझ लो कि अभी चल रहा है तुम लोग का जून, ठीक है. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, इतना ही महीना है तुम्हारे पास. 7 से 8 महीना लेफ्ट है, जिसमें तुम्हारा हाफ ईयरली भी आएगा. इससे पहले तुम्हारा यूनिट टेस्ट भी होगा, और फिर बाद में तुम लोग का शायद नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड 1 या प्री बोर्ड 2 भी होगा. इसमें स्कूल वाले तुम लोग को प्रैक्टिकल फाइल वगैरह भी देंगे बनाने के लिए, इसको भी तुम लोग इसी बीच में करना होगा. फिर दिसंबर से तुम लोग दिसंबर में ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए. तो उससे पहले भी कर देना चाहिए, लेकिन बीच में नवंबर में प्री बोर्ड होता है ना, तो ट्वेल्थ में थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसलिए मॉक टेस्ट बोलते हैं दिसंबर से देना शुरू कर देना चाहिए 12th को, ठीक है. इसी देखो दिसंबर के आसपास ही शायद हम लोग का तो प्री बोर्ड 2 चल रहा था, उसका प्री बोर्ड 1 चल रहा था. तो वो स्कूल डिपेंडेंट है कि कैसा वो करवाता है. तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी चलेगा शायद तुम लोग का जनवरी में, हम लोग का जनवरी में ही चला था प्रैक्टिकल, उसमें JEE मेंस भी था. तो इट विल बी अ टफ टाइम फॉर यू ऑल गाइस, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त
ही तुम लोग का मेन क्रक्स है। अब सितंबर में तुम लोग हाफ ईयरली हो जाएगा, फिर हाफ ईयरली के बीच में भी तुम लोग का कोचिंग में चलेगा ना, ऐसा नहीं कि कोचिंग बंद हो जाएगा, कोचिंग में तो तुम्हारा सिलेबस आगे बढ़ेगा ही। तो सबसे पहले तो यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट तुम लोग का जून जुलाई अगस्त कभी भी हो सकता है। सितंबर में तुम्हारा हाफ ईयरली होगा फॉर श्योर। अगर बहुत सारे स्कूल है ऊपर नीचे कुछ होगा, सितंबर में मैक्सिमम स्कूल्स में हाफ ईयरली शुरू हो जाता है। अगर यूनिट टेस्ट का सिलेबस देखेंगे तो यूनिट टेस्ट में जो समर वेकेशन के बाद होगा, यूनिट टेस्ट में फिजिक्स में तुम लोग का या तो इलेक्ट्रो आएगा, इलेक्ट्रो तो कंफर्म है वो आएगा ही आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी या मूविंग चार्ज में से कोई तुम लोग का स्कूल डिपेंडेंट है, स्कूल के हिसाब से तुम आ सकता है। मैथ में मैट्रिक्स में रिलेशन फंक्शन ITF, देखिए ये ITF है, ये आ सकते हैं। केमिस्ट्री में पीसी में शायद 2 चैप्टर दे दे या 3 चैप्टर दे दे। अब स्कूल के पर भरोसा है कि वो PC दे या IOC दे या OC दे। बेसिकली स्कूल PC देता है तो PC ही होगा, या तो IOC दे सकते हैं या तो OC दे सकते हैं, 2-3 चैप्टर। ठीक है, स्कूल डिपेंडेंट होता है। और ये तुम लोग का है कि जो तुम लोग के बैच में अभी जो करंटली चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा, ठीक है, चल रहा होगा अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा होगा, उसको खत्म होने में टाइम लगता है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी तुम लोग का चलेगा, फिर कैपेसिटर भी आएगा करंट के। तो इसको ये जो यूनिट है ना, इसको ख़त्म होने में ही समय लगता है। इट विल टेक टाइम। जुलाई तक शायद तुम लोग का ख़त्म हो गए शायद, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता कि आसपास तुम्हारा जुलाई के आसपास तो ख़त्म हो सकता है। मैथ्स में भी तुम्हारा रिलेशन फंक्शन चाहिए, फिर ITF आएगा, फिर तुम्हारा कैलकुलस शुरू होगा। कैलकुलस वाला मेन होगा जो तुम लोग का हाफ ईयरली के आसपास चलेगा जब बैच में। और उसी समय तुम लोग का कैलकुलस जो मेन पोर्शन होता है JEE का भी और बोर्ड्स का भी, उसी समय तुम लोग हाफ ईयरली होगा। तो इसलिए बोले मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है, इसलिए बहुत प्रैक्टिकल होकर ही तुम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी तुम्हारा PC हो गया था तुम लोग का बैच में, और OC चल रहा है। ठीक है, हाफ ईयरली तुम लोग का सितंबर में होता है। फिजिक्स में फर्स्ट वाले की बुक 1 आएगा, मैथ्स में भी बुक 1 आता है। केमिस्ट्री में देख लेना कैसा, तो PC तो आता ही है। अब IOC तुम लोग का स्कूल में शुरू होगा तो IOC आएगा, तो OC आएगा तो OC आएगा। जी स्कूल डिपेंडेंट है, तुम लोग पहले से देख लेना कि क्या तुम लोग के एग्ज़ाम में आ रहा है, उसका सिलेबस पहले तुम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो मेन दिक्कत है कि अब क्या करें। ठीक है, तो बैच में देखो तुम लोग का फिजिक्स में बैच के हिसाब से तुम लोग को चलना ही है। जैसे तुम लोग का पहले एक चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी तुम लोग का चलना है। ठीक है, तो JEE में जो तुम लोग को मटेरियल मिल रहा है, कोचिंग मॉड्यूल DPP ये सब का, इसको कर लो। फिर एटलीस्ट 5 ईयर का तो तुम लोग बनाना है PYQ। इसी तुम लोग का पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में तुम लोग कितना पूछा गया है 5 साल में। 5 ईयर अभी के लिए सफिशिएंट है शुरुआत के लिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब रिवीजन करोगे तो अपना 2-3 साल का जो बचा हुआ है उसको साथ साथ में कर लेना। जैसे टेस्ट वेस्ट होता है ना, तो साथ साथ में तुम्हारा उसी को प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग को बोर्ड्स उसी समय ख़त्म करना है। बोर्ड्स में मेन है थ्योरी, डेरिवेशन, NCERT, जो एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको करना ज़रूरी है। PYQ फॉर बोर्ड्स जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिए साथ ही में निपटा दो ये सारा। अगर तुम साथ ही में निपटा दो तो तुम्हारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा फॉर JEE और बोर्ड। और देखो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें बहुत दिक्कत आएगा अगर तुम बोर्ड्स का करोगे ना, इसमें बहुत सारी डेरिवेशन है। लेकिन अगर तुम इसको कर लोगे ना तुमको आगे बहुत ईजी आएगा, क्योंकि तुम्हारा जो चैप्टर है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म वाला, उसमें मिलता जुलता ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर तुम यहाँ पे अच्छे से पढ़ लोगे ना तो वहाँ पे भी तुमको थोड़ा सा तरह आता होगा। और केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है, केमिस्ट्री बैच से करो। चैप्टर 1 है JEE का निपटाओ, जो तुमको मॉड्यूल और कोचिंग मटेरियल मिलता है। PYQ निपटाओ 5 ईयर का। फिर बोर्ड्स में NCERT करना मस्ट है IOC और OC के लिए, और PYQ उसका बोर्ड्स का भी लगाना पड़ेगा तुम लोग को, नहीं तो नहीं पता चलेगा बोर्ड्स में क्या। साथ ही में निपटाओ, जैसे जैसे एक चैप्टर हो रहा है दोनों बैच में, वैसे वैसे निपटाते जाओ। वैसे ही मैथ्स का भी निपटाओ। जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, इसका JEE का PYQ टाइम लगता है, फिर मैथ्स का PYQ करने में टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट करना 2-3 साल का कॉन्सेप्ट के साथ अपना बनाते रहना, जिससे तुम लोग का क्लैरिटी भी हो और तुम्हारा हो भी जाए। फिर बोर्ड्स के लिए भी तुम PYQ करो, NCERT करो। अगर तुमको इंसफिशिएंट लगे तो तुम थोड़ा सा RS या RT लगा सकते हो, अगर टाइम मिले तो लगा लेना, हमारे लिए ही बेहतरीन होगा। अब देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आता है, जब स्कूल एग्ज़ाम बीच में आता है। स्कूल एग्ज़ाम में कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर तुम्हारा बैच में कंप्लीट हो गया तो सही, ठीक है। चैप्टर बैच में कंप्लीट नहीं हुआ है तो बच्चे क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं। या तो लाइव क्लास जो होता है कोचिंग में उसको छोड़ देते हैं, या तो स्कूल एग्ज़ाम को नहीं वैल्यू करते। तो ये दोनों करना ही मिस्टेक है। अगर तुम JEE को ये लाइव लेक्चर को छोड़ोगे अपने JEE में, तो JEE में लाइव लेक्चर को छोड़ोगे अपने बैच में, तो JEE में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। अगर बोर्ड्स स्कूल के एग्ज़ाम को अगर वैल्यू कम दिए तो तुम्हारा बोर्ड्स में बैंड बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत प्रेशर आ जाता है। दोनों में ही मिस्टेक है। थी प्रैक्टिकल वे से अच्छे से मैनेज करना होता है JEE स्टूडेंट को, अपने स्कूल का एग्ज़ाम, स्कूल और जो जिन लोगों का कोचिंग में एग्ज़ाम होता है, मॉक्स होते हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब देखो यूनिट टेस्ट होता है वो स्कूल डिपेंडेंट होता है, तो सिलेबस तुम लोग को पहले ही मिल जाता है। तो ट्राई करना कि कंप्लीट इसको करना बिफोर एग्ज़ाम। अगर तुम्हारा जुलाई में अगर जैसे मतलब जुलाई के लास्ट वीक में सिलेबस तो पहले ही मिल जाता है,
अपना सिलेबस निपटाओ पहले। अगर तुम्हारा कोचिंग में कंप्लीट है, बैच में कंप्लीट हो गया तुम लोग का, तो उसको बोर्ड लेवल में अच्छे से पढ़ लो, तो हमारा हो जाएगा। बैच में कंप्लीट नहीं हुआ है, मेन दिक्कत यहाँ था। कभी कभी कोई जैसे बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, आगे हम बताते हैं कि कौन कौन से बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर हो, तो इसमें जेई में तो बहुत ज़्यादा ही लेक्चर्स का होता है, तो उसको कंप्लीट ही नहीं होता। लेकिन स्कूल इतना तेज़ भागता है, भागेगा। अभी नहीं भागा है तो भागेगा, समर वेकेशन ख़त्म हो गया भागेगा, बता रहे श्योर है भागेगा। तो क्या करना है इसमें, कंप्लीट बोर्ड लेवल कर लेना, एटलीस्ट बोर्ड लेवल निपटा दो। इसको मत छोड़ दो कि भाई मेरा कोचिंग में नहीं हुआ है तो हम इसको छोड़ देंगे। कंप्लीट करो कि वन शॉट से एटलीस्ट बोर्ड लेवल का कंप्लीट कर ले, पीवाईक्यू कर ले। इसको निगलेक्ट नहीं करना है। बोर्ड्स का लेवल, बोर्ड्स को और उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत टूटा फूटा ही अच्छे से, मतलब जैसे डेरिवेशन होगी, और डेरिवेशन 5 बार लिखोगे तो याद नहीं हो जाएगा। डेफिनेशन बस उसमें जितना डेफिनेशन कॉपी में लिखाया गया, अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो उसी को याद कर लो, उसी में आएगा। यही तुमको फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री में करना है, मैथ्स में करना है, और अगर तुम्हारा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें भी करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर दिक्कत हो जाता है। तो ये सबको बहुत अभी होंगे कि बहुत सारे की इंग्लिश का पहले चैप्टर ही नहीं पढ़े अभी तक। पीएचडी का पहला चैप्टर है, बहुत सारे लोग पीएचडी लेते हैं तो उसका पहले चैप्टर है, अभी तक बुक खोल के नहीं देखा। ऐसा नहीं करना है। तुम्हारा इंग्लिश को भी पढ़ना है, तुम्हारा पीएचडी को भी ना सोचो कि पीएचडी और इंग्लिश आसान है, लास्ट में वगैरह नहीं होता है। पढ़ना पड़ता है दोनों चीज़ को। पीएचडी तो इतना आसान नहीं है कि लिख लोगे, पढ़ना पड़ता है इसमें भी। अब देखो मेन है हाफ ईयरली, जो तुम लोग का आएगा सितंबर में। इसमें गारंटी है। फिजिक्स में बुक 1 तुम लोग को जो शुरू का जो 7 या 8 चैप्टर जितना होता है EM वेव तक पूरा आएगा बुक 1। मैथ्स में पूरा बुक 1 आएगा। केमिस्ट्री में पीसी तो आएगा ही आएगा। आईओसी और ओसी अपने हिसाब से देख लेना स्कूल क्या तुम लोग का पहले शुरुआत करवाता है, ओसी करवाते हैं कि आईओसी करवाते हैं। अब देखो दिक्कत कहाँ आता है, फिजिक्स में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी लिखना तुमको आना चाहिए, डिफाइन तुमको आना चाहिए, एसआई नोट तुमको आना चाहिए, तभी तुमको स्कूल में नंबर मिलेगा। अगर तुमको डिफाइन में अगर बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफाइन करने के लिए, अब तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो 1 यूनिट चार्ज के हिसाब से फोर्स लगता है। तब तुम पेपर में ये थोड़ी ना लिख के आओगे कि इस 1 यूनिट चार्ज में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब तुम्हें लिखना पड़ेगा तुमको ना, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज वेयर द टेस्ट चार्ज इज़ वेरी स्मॉल। ये लिखना पड़ेगा तभी तुमको नंबर मिलेगा। और जैसे देखो रिलेशन एंड फंक्शन, अगर तुम जेई के हिसाब से देखो इसमें बहुत सारा टॉपिक है, 20 लेक्चर के अप्रॉक्स ज़्यादा लगता है पहली बार पढ़ाने में टीचर्स को। और अगर वही तुम देखोगे बोर्ड्स में तुम देखोगे 3 से 4 कि व्हाट इज़ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, इसी में तुम्हारा फ्रेंड सेफ्टी निपट गया। और वही टॉपिक्स आ जाएगा, जैसे तुम्हारा पैरेटिव फंक्शन हो जाएगा, बहुत सारे आ जाएगा। और ITF भी अगर बोर्ड्स के हिसाब से देखोगे तो बहुत ईजी है। जेई में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और मेन दिक्कत तो तुम्हारा कैलकुलस में आएगा। कैलकुलस तब चलेगा जब तुम्हारा हाफ ईयरली होगा और कोचिंग थोड़ी लग जाएगा। कोचिंग भी चलेगा, कोचिंग में ही हम लोग पिछले साल हम लोग आशीष सर ले रहे थे उस समय, तो शायद मेरे ख्याल से हाफ ईयरली में हम लोग का इंटीग्रेशन शुरू हो गया था। हाँ शायद, हाँ इंटीग्रेशन हम लोग का शुरू हुआ था। इंटीग्रेशन जब तक हाफ ईयरली चला तब तक इंटीग्रेशन वो चला, तो वही है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है फिर, क्योंकि सर तो बहुत सारा होमवर्क देते थे तो भी रह जाता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। देखो अब देखो 3D ज्योमेट्री में तुम्हारा लाइन्स और प्लेन्स दोनों हैं, जो जेई एडवांस प्लेन्स से एडवांस के सिलेबस में, लाइन तुम्हारा मेन से सिलेबस में। बोर्ड्स में भी लाइन्स ही है, ठीक है। लेकिन इस समय क्या होगा, तुम लोग का प्री बोर्ड शायद चलेगा नवंबर के आसपास, ये चलेगा बैच में शायद, तो इसके बीच में चलेगा तुम्हारा प्री बोर्ड चलेगा, तो फिर तुमको खुद ही दिक्कत होगा। इसमें भी केस बेस्ड स्टडी आता है, नहीं केस बेस्ड तो नहीं आता, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो वही है कि प्री बोर्ड के समय तुम लोग का ये सब चलेगा तो दिक्कत होगा। कोशिश करना अपना जो सिलेबस है ना वो नवंबर तक फिनिश कर देना, अक्टूबर लास्ट और नवंबर तक फिनिश कर देना, क्योंकि तुमको ही दिक्कत होगा। देखो तुम लोग का नवंबर में मॉडर्न फिजिक्स होगा, आईओसी में चलो सॉर्ट एनालिसिस चलेगा तो कर सकते हो। फिर शायद नवंबर में वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी सब चलता है, उसमें बहुत प्रेशर होता है, बच्चे के लिए प्रेशर होता है उस समय, बच्चे को नहीं समझ में आता है भाई। उस समय प्री बोर्ड भी चलता है, तुम्हारा बहुत सारा चीज़ चलता है, तुमको प्रेशर इसका होगा कि तुमको मॉक टेस्ट भी देना है, तुम्हारा जेईई मेंस भी आ रहा है, कुछ ही महीने हैं, उस समय सब रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो जाएगा। तो भाई इसलिए बोल रहे तब अपना कोशिश करना कि नवंबर एंड तक ख़त्म कर लेने के लिए, या अक्टूबर एंड तक, मतलब नवंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए तुम लोग का सिलेबस। तो अब हाफ ईयरली के लिए क्या करें, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अभी से लग जाओ, साथ साथ में जीओ बोर्ड्स को दोनों करो। जैसे वही बोले ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम लोग का फिजिक्स में चल रहा है, तो आपको बोर्ड्स लेवल में ख़त्म करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, तो हो जाएगा तुम लोग का कंप्लीटेड बिफोर योर हाफ ईयरली। 1 वीक का वो ख़त्म कर लेना, जिससे तुम लोग को 1 वीक का रिवीजन करने को टाइम मिले। अब देखो इसमें भी तुम लोग को थोड़ा टाइम निकाल के करना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स में है
डेरिवेशन, डिफाइन, असाइन, न्यूमेरिकल, बोर्ड लेवल का जो न्यूमेरिकल्स वगैरह जो स्कूल में पूछा जाता है, तो इसके लिए टाइम निकाल के इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में भी तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर एक आर मिनिमम निकाल पाओ थोड़ा सा जेई से थोड़ा सा निकाल के, जैसे अभी तो तुम लोग का चलो बैलेंस आउट हो जाएगा, लेकिन स्कूल खुलेगा तुम लोग का दिक्कत शुरू हो जाएगा, हम बता रहे हैं। तो 1 घंटा निकाल के थोड़ा सा मैनेज करो, इसमें प्रैक्टिस करो। मैथ्स में ऐसे केमिस्ट्री में है, प्रैक्टिस करो, डिफाइन सब आता है तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें यही सब है, इसको अच्छे से करना हो। देखो मैंने पर्सनली मैंने फ़िज़िक्स के लिए जो फिज़िक्स की जो कैटेलिस्ट बुक आती है पीडब्ल्यू में, राजवन सर और गगन सर जो लिखी थी ना, तो वो उसको मैंने फॉलो किया था। और पीवाईक्यू के लिए कोई भी पीवाईक्यू बुक लेना, मैंने ओसवाल लिया था पीवाईक्यू के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता है। नो डाउट कैटलिस्ट में भी रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो मैंने उसको फॉलो किया था। मैथ्स में पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और बैच में जो तुम लोग चल रहे हो वो कर लेना अच्छे से, तो हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू कर लेना, बस इतना ही करोगे तब भी हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम अच्छे से कोचिंग मटेरियल और बोर्ड के लिए पीवाईक्यू भी कर लेते हो तो हो जाएगा, तुम लोग अच्छे से हो जाएगा। बस यही है कि फिजिक्स में तुम लोग जैसे डिफाइन है उसको लिखना आना चाहिए। केमिस्ट्री में भी डिफाइंस वगैरह होता है, तो जैसे ये ऑर्गेनिक में रिएक्शन अब अच्छे से लिखना आना चाहिए ना, कि ये कोई जैसे वुड्स रिएक्शन हो गया, अब तुमको उसमें लिखना आना चाहिए ना कि ये इसको इससे करेंगे तो ये आएगा, फिर तुम्हारा नीचे रिएक्शन लिखोगे तो उसमें नंबर मिलता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब ध्यान रखना। देखोगे तो मैंने अपने डेरिवेशन की एक नोटबुक बनाई थी, ये देखो ये है फिज़िक्स की, ठीक है। तो ये फिज़िक्स में तो फ्रंट में मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाया था, ये बोर्ड स्पेसिफिक था। देखो तुम लोग बोले मैंने कैटेलिस्ट लिए, फिर भी हम लिख रहे। देखो लिखोगे तभी तुमको याद होगा, ये मान लो, सिर्फ रीड करने से नहीं होने वाला। अगर लिखोगे नहीं तो एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, तो भूल जाओगे, तो ये तो है। तो इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो होगा। तो ये ये मेरा शॉर्ट नोट्स था, इसको तो अभी बहुत हो गया हाईलाइटेड, क्योंकि बहुत बार पढ़े थे तो ये हो गया था, तो कुछ फट आ गया होगा। तो ये सब था मेरा। हाँ देखो ये डेरिवेशन है, तो ये तुम लोग भी एक नोटबुक बना के अपना डेरिवेशन लिख सकते हो। जैसे ये मैंने डेरिवेशंस लिखी थी, ये तो इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला है, इसमें सारी डेरिवेशन एक नोटबुक में लिख ली थी, जिससे मेरे को लास्ट में मैं रिविज़न करने के लिए बहुत हेल्प मिल गया था। ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स की बनाई थी। और अगर तुमको चाहिए तो ये मेरे चैनल पे भी अपलोडेड है फ्री में, तो तुम वहाँ से देख सकते हो। ये तो फिज़िक्स का हो गया। तो ये केमिस्ट्री का है मेरा, तो इसमें भी है डेफिनेशन वगैरह जो भी इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन मतलब एग्जाम्पल वगैरह सब मैंने लिखा था पूरा। ये पूरा बोर्ड ओरिएंटेड ही किताब था। हाँ फिज़िक्स के लिए मैंने कैटेलिस्ट यूज़ किया था, और केमिस्ट्री के लिए मैंने मतलब नोट्स ही बनाया था, उसके लिए मैंने कुछ फॉलो नहीं किया था। तो इसमें एनसीईआरटी ही इनफ है। तो ये सोल्यूशन का है। तो भाई देखो ये देखो डेफिनेशन सब लिखना इंपॉर्टेंट है, तो आना चाहिए। सो यही है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको करते रहना। और साथ में अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इंग्लिश, पीएचडी और आईपी, इसको, जैसे मेरा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आईपी था, किसी का सीएस हो जाता है, एआई हो सकता है। आईपी से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो आईपी कंप्यूटर का ही वही है, जैसे सीएस आईपी आईटी होता है ना, तो वही आईपी है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट आईपी था और पीएचडी था और इंग्लिश था, तो इसको भी तुम लोगों को साथ पढ़ना है और कोशिश करना। ये सब तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस जल्दी निपटा लो तुम लोग। देखो इंग्लिश, पीएचडी और आईपी भी इंपॉर्टेंट है। देखो इंग्लिश में तुम लोग का 8 फ्लेमिंगो का में 8 प्रोज होता है, 5 पोयम होता है, और विस्तास में 6 चैप्टर होता है, ठीक है। तो इसको भी तुम लोग कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट में एक दिन एग्जाम से पहले पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर एक हफ्ते में एक चैप्टर भी उठाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रामर में नोटिस से होता है तुम लोग का, इन्विटेशन रिप्लाई में ऑप्शन रहता है, लेटर टू द एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, आर्टिकल, रिपोर्ट, ये सब होता है। सबका फॉर्मेट अच्छे से देख कर इसको पढ़ लेना। हाफ ईयरली में आता है नोटिस, इन्विटेशन, रिप्लाई सब आता है। तो अगर मेरी मानो तो अगर तुमको प्रिपेयर करना है ना, तो नोटिस तो करना ही, तो एक ही आता है। इन्विटेशन और रिप्लाई में अगर ऑप्शन आता है तो रिप्लाई कर लेना, वो ईजी रहता है। लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में एडिटर कर सकते हो, क्योंकि एडिटर करोगे तो आर्टिकल राइटिंग में ईजी होता है, आर्टिकल रिपोर्ट में आर्टिकल ईजी होता है। तो अगर आर्टिकल करोगे और एडिटर वाला करोगे तो इनमें दोनों में हेल्प मिल जाएगा। ऑलमोस्ट फॉर्मेट से फॉर्मेट अलग है, बस कंटेंट जो बॉडी और इंट्रोडक्शन सब आता है ना, वो थोड़ा सेम ही है, तो हेल्प हो जाएगा। मैंने पर्सनली इसको पीडब्ल्यू में अनुराग सर थे, उनसे पढ़ा था। विजिट लेक्चर्स तुम इसको फॉलो कर सकते हो। मैंने तो परिश्रम बैच ही को फॉलो किया था, इसमें जो जैसे जैसे लेक्चर आ रहे थे, जैसे जैसे सर ले रहे थे वीक में, वैसे वैसे मेरा भी कंप्लीट होते गया। तो मेरा अपडेट था उस समय। तो
तो और इसके लिए PYQ कर लेना, बुक में जो NCERT के बैक में क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेना लिटरेचर में, बस इतना ही कर लेना सफिशिएंट होगा तुम लोग के लिए। और अगर PHE में बात करें तो PHE में 10 चैप्टर होगा। तो इसमें जो मैंने किया था वो बता रही हूँ। पहले इसको लेक्चर देख लेना, मतलब वीडियो 1 शॉट, ठीक है। मैंने पर्सनली जाके सर से पढ़ा था, यूट्यूब में मिल जाएगा तुम लोग को, अगर तुम लोग जाके देख सकते। अगर उनकी अभी कोई नया रिसेंट में कोई वीडियो डाले तो उसको देखना, उसको कंप्लीट करना, या तो पिछले साल का जो मकसद सीरीज़ था उससे तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो, वो सफिशिएंट होगा। उसके बाद क्या करना, रीड योर बुक, PHE बुक पढ़ना ज़रूरी है। अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग को लिखने में दिक्कत होगा। साथ साथ में अपना PYQ को भी फॉलो, मतलब PYQ देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग कर सकते हो। और नोट्स बनाना है तो बना लो, नहीं तो बुक रीडिंग कर सकते हो, बुक में मार्क कर लेना तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये है IP का, ठीक है। मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट IP था, इसमें भी मेरे ख्याल से 1 2 3 4 चैप्टर होता है। पांडास में 2 यूनिट होते हैं। तो और SQL में देखोगे तो कुछ पार्ट 11th का रहता है, उसमें बेसिक्स तुमको लिस्ट और डिक्शनरी, डेटा कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन टू SQL आना चाहिए 11th का। और क्योंकि वो क्लास 12th में बोर्ड्स में आता ही बात है, कुछ पार्ट उसका आता है तो उसको पढ़ लेना अच्छे से। और पांडास में 2 यूनिट है, मैथमेटिक्स, ये सब तुम्हारा प्रोग्रामिंग सेक्शन में आएगा, तो उसके लिए तुमको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ भी कर लेना। और इंटरनेट, वेब और सोशल इम्पैक्ट, ये दोनों थ्योरी वाले चैप्टर है, इसको NCERT की किताब से एक बार शुरुआत, जैसे अभी तो कोई, अब देखो तुम लोग स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग का हाँ फील्ड में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इसको बाद में भी कर सकते, एक बार रीड करके समझ के छोड़ देना। फिर जब एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उससे पहले पढ़ लेना, लेकिन पढ़ के रखना कि पता तो होना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले, बोर्ड एग्ज़ाम के जो हफ्ता हम लोग को मिलता है ना छुट्टी का, उसमें पढ़ रहा है, ऐसे मत करना है, पहले से पढ़ के रखना, ठीक है। इसलिए वो कौन सा यूट्यूब चैनल मैंने पर्सनली फॉलो किया, टेक क्वीन का, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो उनकी वीडियोस मैंने समझ लिया। और NCERT के बैक के क्वेश्चन कर लेना, PYQ कर लेना, मस्त है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इससे हो जाएगा। और बस यही है, इतना ही है। तो ये मेरा कंप्लीट गाइडेंस वीडियो था। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इंक्लूड मैंने कर दिया, इंग्लिश, PHE और IP, ये पूरा हाफ ईयरली तक रोड मैप है, तो इसको अच्छे से फॉलो करना। फिजिक्स में तुमको हाफ ईयरली में तो इम्पॉर्टेंट है कि तुम लोग का फिजिक्स में बुक 1 आएगा, मैथ में बुक 1 आएगा, और केमिस्ट्री में PC तो आएगा, IUC OC डिपेंड करता है तुम लोग के स्कूल में। इंग्लिश में भी मेरे ख्याल से वो बढ़ जाएगा, जैसे 8 चैप्टर 4 चैप्टर आएगा, 3 चैप्टर 6, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि तुम लोग कैसे। नोटिस, ग्रामर, पोर्शन अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। मैंने उस वाले की इंग्लिश वाली जो बुक है PYQ बुक, उससे मैंने प्रैक्टिस किया था प्योर उससे ही, और कोई मटेरियल मैंने फॉलो नहीं किया था, तो इससे तुम लोग कर सकते हो। PHE के लिए भी PYQ बुक है, उससे अच्छे से कर लेना। और हाफ ईयरली में तुम लोग का आ सकता है, इसमें शायद 5 चैप्टर आ जाए, ऐसा हो जाता, हम लोग का आया था, तुम लोग का भी आ सकता है। और IP में देख लेना कैसे होगा, तो उसके हिसाब से SQL, पांडास सब होता है, तो यही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और बस इतना ही है, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और एक एडवाइस दे रही हूँ कि डोंट स्टडी सेपरेटली फॉर JEE एंड बोर्ड, साथ ही में पढ़ना। और स्टडी अ चैप्टर वंस बट स्टडी इट प्रॉपरली। इफ़ योर चैप्टर इज़ नॉट completed in your coaching and exam is approaching, then study only the boards level, उतना लेवल का पढ़ लो जिससे तुम्हारा एग्ज़ाम तक हो जाए और तुम्हारा बोर्ड भी नहीं पड़ जाए। तुम देखो, अगर कोचिंग में कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा, अगर बोर्ड्स के तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा एडवांटेज ही होगा। ऐसा नहीं कि तुम संडे को लेकर बैठोगे थोड़ा सा क्वेश्चन, देखो यूट्यूब में तो बहुत सारी वीडियो मिल जाती है, उससे तुम लोग अपना कवर कर सकते हो। मैंने पूरा डिटेल मैंने बताया है कि कैसे कैसे करना है। और I will be posting one more video before half yearly, like 2 to 3 weeks, बता दें कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर सकते हो। तो I will be sharing a video once. So that is it for this video. This is the complete roadmap which I have given to you all based on my experience. And remember that June is not the month to panic, it is the month to build momentum. Many students become directionless thinking, and by the time they realize it, their exams are already at the door and you are stressing out. You need to be smartest and the topper of your class. You just need to stay consistent and achieve your desired goal. Complete your lecture, revise regularly, solve question, and don't ignore these exams completely. So that is it all. Thank you so much for watching this video. If you found this roadmap really helpful, so please do like, share and comment your opinions. So that is it for me. Hope you like it. Thanks for watching. Bye bye.